Good morning, students. How are you? Hope all are fine, all are safe at home. Welcome back in our video. Students, today in this video, we are going to discuss part D short answer questions of chapter number 3. Our chapter number 3 is Nature of Matter. Now, let's start the question answers. First question is define the following. Natural materials. Natural materials, the materials which occurs naturally, are called natural materials. वो materials जो naturally हमारे environment में होते हैं, that are known as natural materials, just like air, water, river, forest, all are natural materials. Clear? The next one is transparent material. Materials which allow light to pass through them are called transparent materials. वो materials जिनमें से light pass हो जाती है, that are known as transparent materials. Example, pure water, air and a thin sheet of polythene, etc. प्योर वाटर, जब वाटर प्योर होता है तो उसमें से लाइट क्रॉस कर जाती है, पास हो जाती है. एयर में से भी लाइट पास होती है और पॉलीथीन शीट, थिन शीट ऑफ पॉलीथीन, उसमें से भी लाइट पास हो जाती है. सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज नेम एनी 3 मटेरियल्स दैट आर ट्रांसपेरेंट. Okay, so you have to give the examples of materials which are transparent. So transparent materials are pure water, air and a thin sheet of polythene. Students, as you know that the transparent materials are those materials in which light can pass. Okay, so these are the pure water, air and a thin sheet of polythene. Now the next one is you have to give the examples of opaque materials. Friends, as you know, opaque materials are those materials which do not allow to pass the light through them. Okay, इनमें से light pass नहीं होती. So the examples of opaque materials are blackboard, wall एंड प्लास्टिक शीट. इनमें से लाइट क्रॉस नहीं होती. क्लियर? वुड में से भी लाइट क्रॉस नहीं करती. सो स्टूडेंट्स, वुड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटेरियल. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज विच स्टेट ऑफ मैटर कैन, एंड सेकेंड पार्ट इज कैन नॉट ईजली चेंज इट्स शेप एंड वॉल्यूम. मैटर की कौन सी स्टेट है जो अपनी शेप और वॉल्यूम को ईजिली चेंज कर सकती है, और वो कौन सी स्टेट है जो अपनी शेप और वॉल्यूम को ईजिली चेंज नहीं कर सकती. सो आंसर इज गैसियस स्टेट ऑफ मैटर कैन चेंज इट्स शेप एंड वॉल्यूम. Gaseous state of matter can change its volume and shape because the particles have very little hold on one another. Students, you know that in gaseous state the particles are just like this. Okay, इनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है, and that's why these particles have very little hold. Okay, so that's why gaseous state of matter can change its shape and volume easily. Clear? Now the next is solid state of matter. Second part, can't easily change its shape, जो अपनी shape को change नहीं कर सकती. So your answer is solid state of matter can't change its shape and volume because the particles are very tightly packed with each other एंड कांट मूव. स्टूडेंट, सॉलिड स्टेट्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली हेल्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, जस्ट लाइक दिस. इनके बीच में गैप नहीं होता, और अगर होता है भी बहुत लिटिल गैप होता है. क्लियर? तो इनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, डेट्स वाई ये टाइटली पैक्ड होते हैं और
इनकी जो शेप है वो चेंज नहीं होती, ये मूव नहीं कर सकते क्योंकि टाइटली पैक्ड होते हैं, डेट्स वाई ये ईजिली मूव नहीं कर पाते। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू मटेरियल डिफ्यूज इनटू each other? The material diffuse into each other. Answer is material diffuse into each other due to the free movement of the particles. Particles की जो movement होती है वो free होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट उनकी होती रहती है। डेट्स वाई मटेरियल एक स्टेट से दूसरी स्टेट में डिफ्यूज़ हो जाते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल गैसेस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो ईजिली डिफ्यूज़ हो जाते हैं, सॉलिड स्टेट में नहीं हो पाते बट गैसेस स्टेट में ईजिली हो जाते हैं और लिक्विड स्टेट में भी हो जाते हैं, बट वो प्रोसेस क्या होता है, स्लोली होता है। क्लियर। सो मटेरियल डिफ्यूज इनटू ईच अदर ड्यू टू द फ्री मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स की मूवमेंट फ्री होती है, वो मूव कर सकते हैं, डेट्स वाई दे डिफ्यूज इनटू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, define the term solubility. How does it change on increasing the temperature of water? Students, you have to define solubility. What is the meaning of solubility? And then you have to answer how it change on increasing the temperature of water. Means जब हम water का temperature increase कर देते हैं तो solubility पर क्या effect पड़ता है। Clear? So answer is solubility means the maximum amount of substance that can be dissolved in a given volume of a given liquid is called solubility. Suppose students you have given a liquid water. Suppose आपको water given है तो water में maximum ज़्यादा से ज़्यादा कितना amount आप dissolve कर सकते हो। water में maximum amount of substance ज़्यादा से ज़्यादा कितना आप अमाउंट उसमें किसी भी मटेरियल का कितना अमाउंट आप इसमें डिज़ोल्व कर सकते हो, दैट इज़ द सोल्युबिलिटी. सो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस दैट कैन बी डिज़ोल्व्ड इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ अ गिवन लिक्विड. क्लियर. गिवन वॉल्यूम ऑफ अ गिवन लिक्विड. सपोज करो आपको लिक्विड की वॉल्यूम गिवन है हाफ ग्लास ऑफ वाटर. ठीक है, तो उसमें आप कितना ज़्यादा सब्सटेंस को डिज़ोल्व कर सकते हो. शुगर को अगर आप डिज़ोल्व करते हो इसके अंदर तो मैक्सिमम कितनी शुगर हमारे इस हाफ ग्लास ऑफ वाटर में ऐड हो सकती है, दैट गिव्स यू सोल्युबिलिटी. क्लियर. नाउ व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी? ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर of water the solubility of substance generally increase. जब हम वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो solubility भी इंक्रीज हो जाती है. स्टूडेंट्स, जैसे आपको वाटर गिवन है, हाफ ग्लास ऑफ वाटर है, इसमें आप जितनी शुगर ऐड कर सकते हो, मैक्सिमम अमाउंट जितना आप ऐड कर सकते हो, डेट विल गिव यू सोल्युबिलिटी. ओके. बट अगर हम वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, मीन्स अगर हम हॉट वाटर लेते हैं, सपोज करो हमने हाफ ग्लास ऑफ वाटर लिया है एंड डैट इज़ हॉट वाटर, तो हॉट वाटर में जब आप शुगर को डिज़ोल्व करोगे तो वो ज़्यादा अमाउंट में शुगर डिज़ोल्व होगी. ओके. जब आप शुगर को ऐड करोगे हॉट वाटर में तो ज़्यादा अमाउंट में शुगर ऐड होगी. इट्स मीन सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है. सो हॉट वाटर में एज़ कम्पेयर टू कोल्ड वाटर, हॉट वाटर की सोल्युबिलिटी ज़्यादा होती है. सो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर द सोल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस जनरली इंक्रीज. क्लियर. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ पार्ट डी. I hope it's clear to all. You have to write down all these questions in your fair notebook of science, and side by side you have to try to learn all them. Okay, thank you. Have a nice day.